Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's our topic is about the menstrual cycle. We will be discussing the stages and the hormonal changes occurring in the menstrual cycle in detail. Menstrual cycle is the sign of puberty in the females, and that is designated by the monthly discharge of the blood, which is also known as the menses or the menstruation. Normal cycle that is taking place for about 5 days, but 3 to 7 days can be a range of it, in which the monthly discharge of blood is being happening from the vagina of the female. And the length of the cycle is varying from female to female depending upon some factors which we will be discussing next. Okay, here you people can see that the average cycle that the menstrual cycle of an adult woman is about 28 days, but it can range from 21 to 33 days, and that is not abnormal period. That is not the abnormal one. Once the female is at the age of puberty, puberty in the female start at the age of 11 to 13. That varies depending upon certain factors such as stress, diet, and other environmental factors can also be included. So whenever the puberty is started in a girl, that can take about 3 years for that girl to regulate uh, the periods for which she is having the menstrual flow. सो तकरीबन 3 साल के ड्यूरेशन में दैट इज नॉट नेसेसरी कि सब बच्चियों में इसी तरह से हो, कुछ में स्टार्ट से ही रेगुलर हो जाते हैं, बट इट कैन टेक 3 years टू बी रेगुलर फॉर दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल. As I told that stress, illness, tiredness, and the diet, that can be the unbalanced diet or malnutrition, that can affect the flow of the blood in the menstrual cycle. Menstrual cycle is also known as the period as well. A female usually face the menopause between the age of 45 and the 55. इसमें menopause में जो menstrual flow है वो stop हो जाता है, bleeding नहीं होती vagina से, and ultimately the ovaries, that is the indication that ovaries has stopped producing the eggs. Why the menstrual cycle is important, that is very much important in relation to the pregnancy. So whenever the female is having or facing the menopause, तो ultimately उस duration में pregnancy भी नहीं होगी. Here I just want to tell you the informative thing that not only the human but other mammals such as ape, gorilla, chimpanzees, they all are having the menstrual cycle. But some other mammals, they are having the blood flow in the form of estrous cycle. अब एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंस ये होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो विजाइना के थ्रू ब्लीडिंग हो जाती है, बट एस्ट्रस साइकिल में that blood is being reabsorbed back into the body. यूट्रस की लाइनिंग जो शट डाउन हो रही है और ये सारा कुछ जो ब्रेक डाउन हो रहा है इसके अंदर, वो दोबारा से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है एस्ट्रस साइकिल में, while in the menstrual cycle that is being expelled out through the vagina in the form of in blood. The changes which are happening inside the female during the menstrual cycle are related with that of the ovary. Basically, ovaries have female reproductive organ. ठीक है? Inside the ovary, there are many follicles, and the follicle which is going to get mature, ठीक है? That is known as the primary follicle. Primary follicle will be converted into the graffian follicle. Graffian follicle will be ovulating, releasing the egg,
and after that it will be becoming the corpus luteum. And finally, whenever if the pregnancy is not going to happen, the corpus luteum is going to break down. अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस स्टेज पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ दैट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल में ओवरीज में किस तरह से चेंजेस आती हैं विच आर लीडिंग टूवर्ड्स द मेंस्ट्रुअल फ्लो, ब्लड फ्लो. सो आई जस्ट टोल्ड यू के ओवरीज में हमारे पास बहुत सारे फॉलिकल्स हैं जिनमें से एक फॉलिकल डिवेलप होगा एंड दैट इज गोइंग टू बी द प्राइमरी फॉलिकल. वो कोई सा भी हो सकता है, दैट इज नॉट द चॉइस ऑफ द फीमेल. ये हमारी हम बाय चॉइस नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज बाय नेचर इज डूइंग दैट ऑल. So primary follicle will be converted into graffian follicle. Graffian follicle के अंदर egg develop होगा, egg develop होके release होगा and the process is known as ovulation. And the remaining graffian follicle after the release of the egg will become the corpus luteum, and corpus luteum, if pregnancy is not going to happen, that is going to break down. सो प्राइमरी फॉलिकल ये क्या है हमारे पास, दीज आर बेसिकली द यंग फॉलिकल्स. इनके अंदर एक पोटेंशियल एग होता है एंड दीज आर सराउंडेड बाय द मेनी फॉलिकल सेल्स. ग्राफियन फॉलिकल, whenever the primary follicle is going to develop into the graffian follicle, तो उसमें हमारे पास अच्छी खासी अमाउंट में fluid filled spaces होती हैं. That fluid is required for the development of the egg, and egg is always haploid in number, that is having haploid number of chromosome. Half number of chromosome होते हैं, n number of chromosome होते हैं as compared to the rest of the body or the somatic cells. हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सब के अंदर 2n या डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 46 है, पेयर की फॉर्म में है. जबकि जो गैमीट्स होते हैं फीमेल में एग और मेल में स्पर्म, इनमें हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है. And usually one egg is going to be released every month and ovaries will be taking turn to release the egg. Like you can say, if in the February, in the month of February, in the menstrual cycle, right ovary release the egg. In the month of March, left ovary will be going to release the egg. So that is the cycle goes on. Ovaries are going to take turn. ठीक है जी. ओव्यूलेशन में एग ने रिलीज होना है विच इज बीइंग डेवलप्ड इन द ग्राफियल फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, एग रिलीज हो जाएगा. एग आफ्टर इट्स रिलीज इज गोइंग इनटू द ओविडक्ट विच इज हैविंग अ फनल लाइक ओपनिंग. उसका फनल शेप माउथ होता है. रिमेंबर, यहाँ पे एक चीज आपको बहुत क्लियर बता दूं कि ओवरीज और जो ओविडक्ट हैं ये एडजेसेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है जी. ये एडजेसेंट ऑर्गन्स हैं बट दे आर नॉट अटैच्ड टू ईच अदर. ओवरीज डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होती ओविडक्ट के साथ, देयर इज अ गैप. फिर अब एग रिलीज हो जाता है एंड दैट हैज टू गो टू द ओविडक्ट और द फेलोपियन ट्यूब. वो किस तरह से जाएगा वो मैं अभी आपको आगे डिटेल में बताती हूँ. सो द रिलीज ऑफ द एग, द प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन. जी, जस्ट सी दैट. This is the ovary, and from the graffian follicle, egg is going to be released. That is leading its way towards the oviduct through the cilia. Cilia, yes, the cilia of the funnel-shaped mouth of the oviduct. The cilia are going to help the egg to push towards the tube of the oviduct or the fallopian tube की तरफ उसको lead कर रहे हैं. Okay, that is the ovary. Corpus luteum बन जाएगा after the release of the egg, and that is going to release the progesterone which will be maintaining the uterine lining during the pregnancy. ओके आप यहाँ पे ये फनल शेप माउथ देख सकते हैं, आप गैप देख सकते हैं ओवरीज के और फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के दरमियान में गैप है. इसके सीलिया इसको हेल्प करेंगे ओवम रिलीज के बाद, एंड दैट इज बेसिकली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉर्पस लुटियम, हाउ दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन which is going to prepare the female body for the pregnancy. So if the pregnancy is not going to happen, fertilization नहीं होती फीमेल में, तो कॉर्पस लुटियम ब्रेक डाउन हो जाएगा.
ठीक है जी। एंड द डेफिनेटली आपने अभी देखा कि मैंने अभी प्रोजेस्टेरॉन का नाम लिया, और ये सारे का सारा जो साइकिल है हमारे पास, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द हॉर्मोन्स, एंड मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सम बाय द ओवरी इटसेल्फ। सो याद रखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज कंट्रोल्ड बाय द हॉर्मोन्स। हार्मोन दो तरह के, दो जगहों से आएंगे, पिट्यूटरी से एंड ओवरी से। वो भी हम अभी आपको मैं डिटेल में बताती जाऊंगी साथ साथ। So that is basically the diagram showing you people about the development of the primary follicle into the graffian follicle. Graffian follicle में अच्छी खासी amount में fluid filled space है, that is required for the development of the egg. Egg release हो जाता है, that process is known as ovulation. कैसे रिलीज होगा? when the corpus luteum is going to rupture, और ये रप्चर होने के बाद ओवम को रिलीज करेगा, ओवम आ जाएगा ओविडक्ट में, और फनल शेप जो उसका माउथ है दैट इज हैविंग द सीलिया लाइक स्ट्रक्चर ऑन इट। ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब का माउथ फनल शेप है विद द सीलिया विच विल बी लीडिंग द एग टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द ओविडक्ट। After the release of the egg, after ovulation, the graffian follicle is converted into the corpus luteum, और अगर fertilization नहीं हो रही, pregnancy नहीं हो रही, तो corpus luteum breakdown हो जाएगा and the cycle is going to start again. The same diagram is with the difficult names, but आपके वो सिलेबस में नहीं है, जिसे oocyte है, granulosa cell है, ठीका cells हैं, all these are not in your syllabus. एंट्रम वगैरह के आपके सिलेबस में नहीं है। आपने सिंपल याद रखना है, जो आपके पास प्राइमरी फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल है, कॉर्पस लुटियम, ये आपके नेम्स आपके सिलेबस में आपको याद रखने यही है। ठीक है जी। नेक्स्ट, कमिंग टूवर्ड द स्टेजेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी मैंने आपको ओवरीज के अंदर चेंजेस बताई हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में। नाउ कमिंग टूवर्ड द स्टेजेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, 4 स्टेजेस में मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिवाइडेड। Number 1 is the menstrual flow stage that is taking place for day 1 to day 5. In this stage bleeding होती है vagina से। After that follicle stage starts, जिसमें हमारे पास follicles develop होने शुरू होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनता है, एंड ऑन द डे 14, ये एक ही डे है, इसको याद रखना है, डे 14 पे ओव्यूलेशन हो जाती है। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस लुटियम, एंड दैट स्टेज इज नोन एज कॉर्पस लुटियल स्टेज और कॉर्पस लुटियम स्टेज, दैट इज डे 15 to 28. Here the flow diagram for the stages of the menstrual cycle. मेंस्ट्रुएशन हो गई, मेंसेस आ गए, पीरियड्स आ गए, ब्लड आ गया, ब्लीडिंग हो गई डे 1 to 5 में। आफ्टर दैट हमारे पास यूट्रस की लाइनिंग जो है दैट इज गोइंग टू रिपेयर। रिपेयरिंग फंक्शन है हमारे पास द हार्मोन विच इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन, सॉरी एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम है रिपेयरिंग करना, एंड आफ्टर दैट एस्ट्रोजन ने ही इसकी लाइनिंग को थोड़ा सा थिक भी करना है, रिपेयर करना है। आफ्टर दैट प्रोजेस्टेरॉन विल बी रिलीज्ड। प्रोजेस्टेरॉन ने फिर यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन रखना है। सॉरी आई मिस्टेकनली सेड द प्रोजेस्टेरॉन ओवर हियर, बट यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड स्टेज है फॉलिकल स्टेज में, फॉलिकल में से एस्ट्रोजन ने रिलीज होना है। ठीक है जी। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टेज, इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ी सी। यूजली मैंने आपको बताया जो एक नॉर्मल साइकिल है दैट इज अबाउट 28 डेज, 21 to 33 डेज भी नॉर्मल हैं, बट कंसीडर आपने 28 डेज का ही करना है। ठीक है। डे 1 पे मेंस्ट्रुएशन हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज द डे 1 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसमें क्या होता है, जो यूट्रस की लाइनिंग है, इंटरनल लाइनिंग विच इज नोन एज द एंडोमेट्रियम, दैट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन। और आपको पता है कि यूट्रस हाईली सप्लाइड है विद द ब्लड वेसल्स, तो अल्टीमेटली वहां से दैट ब्रोकन डाउन और शेडेड डाउन एंडोमेट्रियम इज गोइंग टू फ्लो आउट विद दैट ऑफ द ब्लड थ्रू द विजाइना से बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। आफ्टर दैट जब ये स्टेज होगी तब पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने FSH दैट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको रिलीज करना है, दैट इज द एंडोक्राइन हार्मोन। ठीक है। अब ये एंडोक्राइन क्यों है, बिकॉज दैट FSH इज गोइंग
to enter into the blood. So in this case, pituitary gland is considered as the endocrine gland. FSH, follicle stimulating hormone, blood में आ जाएगा. फिर क्या होगा, ब्लड में आने के बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी फॉलिकल स्टेज. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल्स के ऊपर एक्ट करेगा, फॉलिकल्स को चेंज करेगा ग्राफियन फॉलिकल्स में. और उसके बाद क्या होगा, व्हेनेवर दैट ग्राफियन फॉलिकल इज डेवलप, तो हमारे पास फॉलिकल ने इटसेल्फ रिलीज कर देना है एस्ट्रोजन को. ठीक है, रिमेंबर सबसे पहले क्या हुआ था, पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ, ब्लड में आया. That, as the name shows, follicle stimulating hormone that is going to act on the follicles in the ovaries. जब follicle mature हो जाएंगे तो follicle is going to release the estrogen. अब estrogen की जब अच्छी खासी amount हो जाएगी, then what will be happening? Estrogen will be giving a negative feedback to the pituitary gland to stop producing follicle stimulating hormone. क्योंकि उसमें हमारे पास एक ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो गया है विच इज हैविंग द पोटेंशियल एग इन इट. ठीक है जी. इसके अलावा एस्ट्रोजन ने मेन काम जो करना था दैट इज रिपेयरिंग करनी है यूट्रस की लाइनिंग की. ठीक है, तो एस्ट्रोजन ने दो काम किए. एक एफएसएच को इनहिबिट करवाया थ्रू द फ्रॉम द पिट्यूटरी, दैट इज द नेगेटिव फीडबैक, एंड उसने यूट्रस की लाइनिंग को रिपेयर किया और यूट्रस को ग्रो करवाया. ठीक है जी. अब नाउ रिमेंबर, जब एफएसएच इनहिबिट हो गया है, ग्राफियन फॉलिकल हमारे पास डेवलप हो चुका है जिसमें से एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है. अब एग को रिलीज होना चाहिए. ठीक है, सो एस्ट्रोजन विल बी इंस्ट्रक्टिंग और गिविंग अ पॉजिटिव फीडबैक फॉर द रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, एंड दैट अगेन इज द हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. अब यहाँ पे एस्ट्रोजन ने, बच्चे गौर से सुनना है, एस्ट्रोजन ने यूट्रस की लाइनिंग को रिपेयर किया. ठीक है, पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक दिया फॉर इनहिबिशन ऑफ एफएसएच, बट पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देना है उसने फॉर द रिलीज ऑफ एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है, आपकी बॉडी में सॉरी आपके सिलेबस में नेगेटिव फीडबैक होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर के अंदर भी आ रहा है, तो अगर हार्मोन से रिलेटेड वो पूछ लेते हैं तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि एफएसएच और एलएच किस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक है रिस्पेक्टिवली. ठीक है जी. ओके, आफ्टर दैट ओव्यूलेशन विल बी हैपनिंग बिकॉज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज हुआ था पिट्यूटरी ने, एंड दैट particular hormone, luteinizing hormone LH, is responsible for ovulation from the graffian follicle. ठीक है, आफ्टर दैट क्या होगा, जब ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज हो गया, ओव्यूलेशन हो गई, आपके पास रिमेनिंग जो रप्चर्ड ये है ग्राफियन फॉलिकल, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस लूटियम. ठीक है जी. अब कॉर्पस लूटियम एक्शन में आ जाएगा. अब इसने क्या करना है, दैट इज गोइंग टू रिलीज और secrete प्रोजेस्टेरॉन एंड सम अमाउंट ऑफ द एस्ट्रोजन. ज्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन और कम अमाउंट में एस्ट्रोजन को रिलीज करवाएगा. ठीक है जी. नाउ लुक एट द डायग्राम केयरफुली. दैट इज द ओवरी. This is the funnel shaped mouth of the fallopian tube or the oviduct, and that is the rest of the oviduct. Ovum is going to develop inside the follicle cells. Graffian follicle develop होगा. Graffian follicle mature हुआ, ovulation हो गई, Graffian follicle rupture हुआ, ovum release हुआ, funnel shaped mouth के through lead करेगा towards the oviduct, and inside the oviduct fertilization will be happening अगर होनी है तो. ठीक है, अगर अनमैरिड है तो अल्टीमेटली वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी बिकॉज स्पर्म्स आर नॉट ओवर देयर, बट मैरिड में दैट इज अंडरस्टूड कि अगर दैट इज अ चांस, मैरिड में भी चांस है बेटा. ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन हो सकती है. और याद रखना है बीटिंग एक्शन है सीलिया का बाय द फनल ऑफ द ओविडक्ट. Then fourth stage, last stage is going to start. That will be happening for most of the period of the menstrual cycle, day 15 से 28 तक. कॉर्पस लूटियम में क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना है उसने. प्रोजेस्टेरॉन के 3 फंक्शंस हैं. प्रोजेस्टेरॉन ने सबसे पहला जो मेन काम करना है, यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन रखना है. यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, एस्ट्रोजन ने रिपेयर किया है यूट्रस की लाइनिंग को, रिमेंबर भूलना नहीं है. प्रोजेस्टेरॉन ने मेंटेन करना है. एस्ट्रोजन रिपेयर करेगा,
और प्रोजेस्टेरॉन ने मेंटेन करना है यूट्रस की लाइनिंग को। ठीक है जी, मेंटेन क्यों करना है? इफ द फर्टिलाइजेशन कैन हैपन, जाइगोट बनेगा, बॉल ऑफ सेल बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा दैट कैन इम्प्लांट इन द यूट्रस लाइनिंग। सो प्रोजेस्टेरॉन ने मेंटेन रखना है यूट्रस की लाइनिंग को फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। दैट इज गोइंग टू इनहिबिट ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगा by inhibiting the LH and also the production of FSH by the pituitary gland. These two are the negative feedback by the progesterone hormone. Okay जी, here is a question. जी जनाब, आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। आपको मैं बता चुकी हूँ कि रिपेयर किसने करना है और मेंटेन किसने रखना है यूट्रस की लाइनिंग को। ओके, नाउ दैट स्लाइड इज वेरी गुड स्लाइड। आपको हार्मोन्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं एक ही स्लाइड में रीकैप करने वाली हूँ। स्टेजेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो थी विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन्स, वो मैं आपको रीकैप कर रही हूँ। ठीक है जी, पिट्यूटरी ग्लैंड इज गोइंग टू secrete the FSH, follicle stimulating hormone. As the name shows, that is the FSH, follicle stimulating hormone, that is going to act on the follicles which are present inside the ovaries. Follicle develop हो जाएंगे and follicle are going to start producing estrogen. Estrogen जब high amount में हो जाएगा, that is going to perform three tasks. Number one is that is going to maintain the that is going to repair the uterus lining, and that is going to inhibit FSH, that is going to uh, release, that is going to instruct the pituitary to release the LH, luteinizing hormone. Whenever there is luteinizing hormone present, that is going to cause the ovulation. Ovulation हो जाएगी और साथ में remaining जो follicle है that is going to be converted into the corpus luteum. Corpus luteum क्या करेगा? That is going to release sufficient amount of progesterone and some amount of estrogen. And progesterone is going to work three functions. They are the maintenance of the uterus lining, for the implantation of the embryo, inhibition of LH and inhibition of FSH. ठीक है जी। सो यहाँ पर मैं आपको हॉर्मोन्स दिखाना चाह रही हूँ। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, MCQs आ जाता होता है पेपर में, ऑफनली आ जाता है। आपने इसमें देखें कि आपके पास मेंस्ट्रुएशन की, ओव्यूलेशन की जो डेज दिए गए हैं नीचे वो चार्ट पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपने हार्मोन्स के लेवल बताने हैं। बेटा ओव्यूलेशन के टाइम पे आपके पास जिस हार्मोन का लेवल हाई होगा दैट इज द, किसने ओव्यूलेशन करवानी है? ओव्यूलेशन किसने करवानी है? LH ने। LH का लेवल यहाँ पे हाई होगा। ओव्यूलेशन से पहले LH के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा। LH के बाद किसका लेवल हाई होना है? प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाएगा। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन फीमेल में जो बॉडी टेम्परेचर है उसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं, स्पाइक्स इन टेम्परेचर होता है, एंड फीमेल कैन टेल इट बेटर। ओके जी, ये हार्मोन्स आपको दिखाए गए हैं, याद रखना है बेटे। चारों के चारों हार्मोन्स हैं इसके अंदर। LH का लेवल हाई होगा डे 14 पे या ओव्यूलेशन पे। अगर हम साइकिल कंसीडर कर रहे हैं कि पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं डे 1 से इन द 28 डे साइकिल, अगर एग्जामिनर आपको डे 6 दे देता है कि जी डे 6 पे पीरियड स्टार्ट हुए हैं, इसको भी सॉल्व करने की ट्रिक है, वो मैं अभी आपको आगे स्लाइड्स में दूंगी। ठीक है, एक कैलकुलेशन है पूरी, मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरह से एग्जैक्ट नंबर निकालना है कि ओव्यूलेशन इस डे पे होगी। अगर साइकिल स्टार्ट हो रहा है डे 6 पे या कोई और डे आपको दे देगा तो बस आपने इतना याद रखना है, जब ओव्यूलेशन है डे 14, अगर वो पीरियड डे 1 पे स्टार्ट है, LH का लेवल हाई है और उस टाइम पे FSH का लेवल कम होगा। LH के लेवल से पहले जिस हार्मोन का लेवल हाई होना चाहिए दैट इज एस्ट्रोजन। LH के बाद जिसका लेवल हाई होना चाहिए दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। ओके जी, अगेन आपको इसमें भी ग्राफ में दिखाया गया है कि किस तरह से ब्लीडिंग की स्टेजेस दिखाई गई हैं, ओव्यूलेशन दिखाई गई है, हार्मोन्स के लेवल दिखाए गए हैं। कंपेयर द लेवल ऑफ LH एंड FSH एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन्स। ओके जी, सो व्हाट हैपेंस अगर आपके पास प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही? अल्टीमेटली बेचारे एग का तो कोई काम ही नहीं है। एग विल ब्रेक डाउन,
LH production is inhibited by the high concentration of progesterone in the blood, and the drop in the LH level in the blood causes the corpus luteum to break down. जब corpus luteum break down हो जाएगा तो ultimately progesterone is not going to be secreted. जब progesterone नहीं है, ultimately हमारे पास क्या होगा? यूट्रस की लाइनिंग मेंटेन नहीं रहेंगी, थिक नहीं रहेंगी. These will get break down. The lining flow from the uterus together with some blood through the vagina. This makes the beginning of the menstruation. Menstrual flow शुरू हो जाता है, bleeding start हो जाती है, period start हो जाते हैं, menses start हो जाते हैं, कुछ भी कह लें इसको. ठीक है. It occurs around the 28th day from the beginning of the previous menstruation. And the follicle stimulating hormone is again produced by the pituitary, and the whole cycle is going to be repeated. Okay, what happens if the pregnancy or the fertilization is going to occur? The fertilized egg will become zygote. Zygote will develop into the embryo. अच्छा, यहाँ पे अब आपको एक चीज स्पेशल बता दूं, that is very much important. बेटे याद रखना है, fertilization will occur in the oviduct. ठीक है. अब zygote will be, अब देखें, egg and sperm, इसका फ्यूजन is considered as the fertilization. ठीक है. Egg is having half number of chromosome, sperm is having half number of chromosome. Whenever both are going to fuse, fertilization is happening, and आपके पास जो zygote बनेगा उसमें number of chromosome हो जाएगा 2n. N from egg, N from sperm. So 2n हो गया, zygote बन गया. अब zygote माइटोसिस का प्रोसेस करता हुआ एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा. एम्ब्रियो इस कंडीशन में हम इसे बॉल ऑफ सेल्स भी कहते हैं. ओविडक्ट में ही हमारे पास बॉल ऑफ सेल्स भी डिवेलप होगी. ठीक है. फर्टिलाइजेशन कहाँ होनी है? ओविडक्ट में. बॉल ऑफ सेल कहाँ बनेगी? ओविडक्ट में बॉल ऑफ सेल बन रही है फ्रॉम जाइगोट बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं. एम्ब्रियो विल एम्बेड इटसेल्फ इन द यूट्रस लाइनिंग. इसके लिए यूट्रस की लाइनिंग का मेंटेन होना बहुत जरूरी है, और इस एम्बेडिंग को कहते हैं इम्प्लांटेशन. एम्ब्रियो सिक्रीट करेगा हार्मोन which prevent the corpus luteum from breaking down until the structure that is known as the placenta that is going to be formed. ठीक है. जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता तब तक कॉर्पस लूटियम ने काम करते रहना है, यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करते रहना है. ठीक है जी. ओके. Corpus luteum continues to secrete progesterone and estrogen. Placenta जब तक बन जाएगा, then placenta will be taking over the charge for the production of progesterone and estrogen, and the cycle, the pregnancy is going to establish or continue रहेगी. Okay, here is a very much important question के अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, then how the रेस्ट ऑफ द ओवा, जो कि ओव्यूल्स, उसके सॉरी ओव्यूल कह रही हूँ, हमारे पास जो ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स हैं, उनके अंदर एग्स हैं, व्हाई दे आर नॉट गोइंग टू बी रिलीज्ड. याद रखना है बेटा जी, प्रोजेस्टेरॉन that is released by the corpus luteum. ठीक है. that is going to maintain the uterus lining. ठीक है. अब प्रेगनेंसी में जब यूट्रस लाइनिंग मेंटेन हो गई, प्लेसेंटा बन गया, प्लेसेंटा विल बी टेकिंग ओवर द चार्ज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन ने क्या किया था? मेंटेन किया था यूट्रस की लाइनिंग को. along with that inhibited FSH and LH. जब FSH इनहिबिट हो गया तो फॉलिकल्स स्टिमुलेट नहीं होंगे. जब फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होंगे तो मैच्योर नहीं होंगे. मैच्योर नहीं होंगे तो ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगा. ठीक है. LH नहीं होगा तो LH ओव्यूलेशन नहीं होगी. ओव्यूलेशन नहीं है तो एग रिलीज नहीं होगा. एग रिलीज नहीं होगा तो अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन नहीं होगी फर्दर. ठीक है जी. यू कैन हैव अ स्लाइड ऑफ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, सॉरी. ओके. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक वो मैंने आपको साथ साथ भी बताए हैं. यू पीपल कैन हैव अ पिक्चर. पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH रिलीज हुआ, फॉलिकल मैच्योर हुआ, फॉलिकल से एस्ट्रोजन बना. एस्ट्रोजन ने पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देना है कि भाई FSH को इनहिबिट कर दो, और पॉजिटिव देना है LH की रिलीज के लिए. ठीक है. आपके पास जो कॉर्पस लूटियम है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुआ है. प्रोजेस्टेरॉन ने भी पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्ट करना है नेगेटिव फीडबैक के लिए फॉर स्टॉपिंग द प्रोडक्शन ऑफ FSH एंड LH. ठीक है जी. ओके. ये डायग्राम देखिए. अब यहाँ पर आपको एक बात बता दूं बेटे, देखें, जो एस्ट्रोजन है that is going to give negative feedback for FSH to the pituitary, while progesterone is going to give the negative feedback to pituitary for
FSH एंड LH दोनों के लिए, ठीक है जी, याद रखिएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी और इनफर्टाइल पीरियड्स एक मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम डिवाइड कर सकते हैं। हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। लेट्स से कि फॉलिकुलर स्टेज है और लूटियल स्टेज है। फॉलिकल स्टेज में फॉलिकल्स ने डेवलप होना है, लूटियल स्टेज में आपको पता है कॉर्पस लूटियम ने एक्शन में हो जाना है, ठीक है। ओके, डे 1 से लेकर डे 5 मेंस्ट्रुएशन हो गई, पीरियड्स आ गए, ब्लड आया, ठीक है, ब्लीडिंग हुई। दिस पीरियड is known till day 9 और 10, ठीक है। दैट इज द इनफर्टाइल पीरियड। इस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ओव्यूलेशन के अराउंड, अब ओव्यूलेशन है डे 14 पे, ओवम रिलीज हो रहा है, ओव्यूलेशन डे 14 पे ओवम रिलीज हुआ। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम पीरियड जब फर्टिलाइजेशन हो सकती है। बट इसके राउंड अबाउट के डेज, नियर अबाउट के डेज भी फर्टाइल पीरियड कंसीडर होते हैं। वो क्यों कंसीडर होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। आफ्टर इसके जो राउंड अबाउट के डेज हैं, 3 to 4 डेज अराउंड कर लें, आफ्टर दैट कुछ पीरियड्स हैं इनफर्टाइल के, ठीक है जी। ये अब आपको क्लियर इसमें समझ आ जाएगा, ठीक है। सो अब दैट इज जो फर्टाइल पीरियड में रेड लाइन मैंने हाईलाइट की हुई है बेटा, दैट कैन वेरी, बट सिर्फ आपने इसको याद रखना है। डिफरेंट जगहों पे आपको डिफरेंट इसकी लेबलिंग मिलेगी। प्लीज याद रखना है कि 14 के आगे पीछे 3-4 डेज, ये 10 से समझ लें, ये 19 तक, 20 तक, दिस एरिया इज कंसीडर्ड एज द फर्टाइल पीरियड। ओवुलेशन के राउंड अबाउट के डेज फर्टाइल पीरियड हैं। जब ब्लीडिंग हो रही है दैट इज टोटली इनफर्टाइल, क्योंकि उस टाइम पे तो ओवम तो कोई रिलीज ही नहीं हुआ हुआ ना, ठीक है। और उसके जो एंड ऑफ द प्रेगनेंसी है वो इनफर्टाइल पीरियड्स होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, फर्टाइल पीरियड 11 to 16 हो गए, इनफर्टाइल पीरियड रिमेनिंग डेज हो गए, व्हाई द फर्टाइल पीरियड इज लॉन्गर देन जस्ट द डे ऑफ ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन तो एक ही डे पे हुई है। द रीजन इज द स्पर्म कैन सर्वाइव अप टू 2 to 7 days, ठीक है जी। फीमेल के विजाइना में स्पर्म सर्वाइव कर सकता है फॉर अबाउट 2 days, और 2 to कहीं पे 7 days भी मेंशन है, नो इशू इन इट, ठीक है, बट दैट कैन सर्वाइव, इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो दैट्स व्हाई, एंड सो एन एग रिलीज्ड 2 days आफ्टर द इंटरकोर्स कैन स्टिल बी फर्टिलाइज्ड, ठीक है जी। ओके, after its release from the ovary, and egg can survive up to 1 to 2 days in the female reproductive system. और एक ये स्लाइड में डिस्क्रिप्शन आपको दी गई है, यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट, आप इसको बाद में तसल्ली से पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, ओके। अब ये मैं आपको बताने लगी हूँ बेटा कि आपने किस तरह से नंबर ऑफ डे कैलकुलेट करना है अगर आपका डे 1 पे प्रेगनेंसी, सॉरी, डे 1 पे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा। डेट ऑफ एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन कैसे कैलकुलेट करनी है? x+4 करके, कि पीरियड कब खत्म होगा, ठीक है, पीरियड कब खत्म होगा। अगर यहाँ पे x कुछ भी ले सकते हैं आप, अगर दैट इज 6, तो खत्म कब होना है? 6 पे स्टार्ट हुआ तो खत्म कब होगा? 6 में आ गया 4 ऐड करें, 7, 8, 9, 10, 10 पे खत्म हो जाएगा पीरियड, ठीक है। डेट ऑफ ओव्यूलेशन कब होगी? x+13 आपने करना है। डेट ऑफ नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट साइकिल कब स्टार्ट होगा? x+28। एंड हियर इज अ वर्ड एग्जाम्पल। Jane had her first period, first day of menses on 3rd January. X 3rd January हो गया. When would she expect the bleeding to end? जी जनाब, that is 7 January, क्योंकि आपने उसमें x+4 करना है तो वो 7 आ जाएगा। X था 3। When is the most fertile day? 16 January, that is the day of ovulation. Next first day of menses will be 31st January, 28 days। बेटा हम ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। पेपर में समटाइम आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और इस फॉर्मूला को याद रखते हुए दैट इज अ बिग हेल्प फॉर यू।
हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि 28 डेज दैट इज द रेगुलर साइकिल, ठीक है। ओके जी। हियर आर सम क्वेश्चंस। आपने क्या करना है, आपने स्क्रीनशॉट ले लें और यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ इंडिपेंडेंटली। अगर आपका दिल करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है। दैट इज अ क्वेश्चन। अब शाबाश, जल्दी से इसका आंसर आप मुझे दे देंगे कमेंट सेक्शन में। एलएच का क्या फंक्शन है और एफएसएच का क्या फंक्शन है? जी, दिस इज अ क्वेश्चन। विच हार्मोन इज नॉट शोन? आपको मैंने बताया था कि डे 14 पे हाई किसका लेवल है, एलएच, लो किसका लेवल है, एफएसएच। एलएच के बाद कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन, तो कौन सा मिसिंग है, एस्ट्रोजन। जी, विच हार्मोन्स कंसंट्रेशन इज मेजर्ड, दैट इज द डे 14 पे मेजर कर रहे हैं, तो दैट इज एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, सो याद रखेंगे पिट्यूटरी के दो हार्मोन है, एफएसएच एंड एलएच। ओवरी के दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एफएसएच ने फॉलिकल को स्टिमुलेट करना है और फॉलिकल जब स्टिमुलेट हो जाएगा तो दैट इज गोइंग टू रिलीज एस्ट्रोजन। एलएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम। एस्ट्रोजन ने क्या करना है, थिक करना है, रिपेयर करना है एंडोमेट्रियम यूट्रस लाइनिंग को, इनहिबिट करना है एफएसएच को, और साथ में स्टिमुलेट करना है एलएच की रिलीज को। प्रोजेस्टेरॉन दैट इज गोइंग टू मेंटेन द यूट्रस लाइनिंग एंडोमेट्रियम एंड इनहिबिट करेगा दोनों एफएसएच और एलएच को। ओके जी, अगेन आपको दिखा दिया मैंने कि किस तरह से हॉर्मोन्स के लेवल्स हैं। आपने याद रखना है 14 डे से पहले एस्ट्रोजन, 14 डे के बाद प्रोजेस्टेरॉन, डे 14 पे एलएच ज्यादा है और एफएसएच कम है। जी, प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन? आपको पता है? कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन कर दें। अगेन टास्क फॉर यू, आंसर द फॉलोइंग्स इन क्वेश्चन। इसका भी पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, सॉल्व करते रहिएगा इसको बाद में। ओके जी, अगेन अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल। On which date is a woman most likely to ovulate if the first day of the menstrual loss was 1st February? G, ovulation का डे बताना है आपने, that is B, 14 February. Thank you very much. I hope that was a informative lesson for you people. अगर आपको अच्छा लगा है, नहीं भी अच्छा लगा, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर दें सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन टाइमली फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज।